The name of unit is transition and inner transition elements. And in examination, this kind of question will be asked. Iron show oxidation state +2 and +3, which will be more stable. And this is the iron Fe2 plus cation and Fe3 plus cation. And you will memorize the answer. Fe3 plus cation means this ion is more stable because half filled 3d orbital is more stable, because in this cation having +3 oxidation state of iron, in this electronic configuration the 3d orbital contain 5 electrons, and according to scientists the half filled and completely filled d orbital is more stable compared with partially filled d orbital. So Fe3 plus cation is more stable compared with Fe2 plus cation. देखिए यूनिट का नाम है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इस यूनिट पर 2 मार्क्स के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि इम्पोर्टेंट है। आयरन आयरन जो एलिमेंट है जिसका सिंबल है Fe से आयरन को डिनोट किया जाता है। शो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +3। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब यहाँ पर आयरन जो न्यूट्रल आयरन एटम है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसलिए इस आयरन पर +2 चार्ज आया जो कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। और एक आयरन न्यूट्रल एटम है जिसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, इसलिए उस पर +3 चार्ज आया है जिसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। विच विल बी मोर स्टेबल। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि आयरन जिस आयरन पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो या जिस आयरन +3 चार्ज हो, तो दोनों में से कौन सा आयरन स्टेबल होगा। तो इसका आंसर यह है कि Fe2 प्लस कटायन वर्सेस Fe3 प्लस कटायन। तो इसमें जो Fe3 प्लस कटायन है यह मोर स्टेबल है बिकॉज हाफ फील्ड 3d ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। जब न्यूट्रल आयरन एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है तब उसकी जो थर्ड शेल है जिसमें 3d ऑर्बिटल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि जब डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो या कम्प्लीटली फील्ड हो तब वह मोर स्टेबल होती है कंपेयर्ड विथ पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल। तो यह सिचुएशन में जो 3d ऑर्बिटल है यह हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करती है, इसलिए यह मोर स्टेबल है। और इसलिए यह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Fe3 प्लस आयन यह मोर स्टेबल है कंपेयर्ड विथ Fe2 प्लस कटायन। यह आंसर आप मेमोराइज कीजिए। तो आपको किस तरह से लिखना है यह भी मैं आपको बताता हूँ। नाउ दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन Fe. This is the neutral Fe atom electronic configuration. We know that in the nucleus of neutral Fe atom there are 26 protons. So the atomic number of iron is 26 because 26 protons are present in the iron nucleus. Also 13 neutrons are present in the iron nucleus, and so also 26 electrons, this is the total 26 electrons are present in 4 different shells around the Fe nucleus. And so the atomic mass of Fe is 56, and this is the information
regarding NEET and JEE examination, memorize this. In Fe atom, 26 protons, 13 neutrons, 26 electrons, and the atomic number of Fe is 26 because 26 protons are present in the Fe nucleus, and the atomic mass of Fe is 56 because atomic mass means the addition of proton and neutron. So 26 proton and 30 neutrons. So the atomic mass of Fe is 56, and memorize this point. And this is the general electronic configuration of neutral Fe atom. In neutral Fe atom, around the nucleus of Fe, 4 shells are present, and this is the shell number 1, which is designated by the capital K letter. This is the shell number 2, which is designated by the capital L letter. This is the shell number 3, which is designated by the capital M letter, and this is the shell number 4, which is designated by the capital N letter. And in this way, the electrons are filled in different orbitals. And this is the simple electronic configuration. This is the same. तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सबसे पहले आयरन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना इस तरह से, जो कि एक सिंपल है, जिसमें तो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन करके दिया है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है आंसर शीट पर, Fe 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2। आपको सबसे पहले आयरन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। बाद में आपको लिखना है Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बाद में आपको लिखना है Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एट द एंड आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाई Fe3+ आयन इज मोर स्टेबल कंपेयर्ड विथ Fe2+ आयन। तो आप यह जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है न्यूट्रल Fe एटम का। देखिए, जो न्यूट्रल Fe एटम है उसका जो न्यूक्लियस है उससे सराउंडेड 4 शेल्स प्रेजेंट होती है। N इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है ये पहली शेल है जिसे K लेटर से दिखाया जाता है। N इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है सेकंड नंबर की शेल है जिसे कैपिटल L लेटर से दिखाया जाता है। N इज इक्वल टू 3, इसका मतलब है ये थर्ड नंबर की शेल है जिसे कैपिटल M लेटर से दिखाया जाता है। और N इज इक्वल टू 4, इसका मतलब है यह फोर्थ शेल है जिसे कैपिटल N लेटर से दिखाया जाता है। और अकॉर्डिंग टू ऑफोबो प्रिंसिपल, इस तरह से न्यूट्रल Fe एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। तो सबसे पहले आपको यह जो नीचे दिया गया है यह सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इसके बाद हम Fe2+ आयन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और इसके बाद हम Fe3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। देखिए, जब यह नॉर्मल Fe एटम Fe2+ कटायन में कन्वर्ट होगा तो यह सबसे पहले जो लास्ट वाला जो शेल है, यह जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, लास्ट शेल, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। यह जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं 4s ऑर्बिटल में, यह 2 इलेक्ट्रॉन यह लॉस करेगा। और जब कोई भी एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब उस एटम पर +2 चार्ज आएगा, जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, और वह न्यूट्रल एटम कटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जब यह नॉर्मल Fe एटम Fe2+ कटायन में कन्वर्ट होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा। देखिए, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe2+ कटायन। इसमें क्या हुआ, जो 4s ऑर्बिटल है वह अभी वैकेंट है। क्यों?
क्योंकि 4s ऑर्बिटल में से 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल Fe एटम ने लॉस किए, इसलिए Fe पर 2+ चार्ज आया। तो आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रल Fe एटम लिखना है आंसर शीट पर, और उसी के साथ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe2+ कटायन लिखना है आंसर शीट पर, जो इस तरह से होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s0। 4s0 मतलब 4s ऑर्बिटल में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए Fe एटम ने, इसलिए Fe पर +2 चार्ज आया। आप देख सकते हैं Fe2+ आया। और आप यह बात मेमोराइज कीजिए या यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप 3d ऑर्बिटल पर। इस Fe2+ कटायन में जो 3d ऑर्बिटल है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि जब 3d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो मतलब वो हाफ फील्ड हो, या 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो मतलब वो कम्प्लीटली फील्ड हो, इस तरह से डी ऑर्बिटल यह मोर स्टेबल होती है कंपेयर्ड विथ पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल है यह पार्शियली फील्ड है, जो कि हाफ फील्ड भी नहीं और कम्प्लीटली फील्ड भी नहीं। तो अभी हम देखेंगे Fe3+ कटायन में 3d ऑर्बिटल किस तरह से हाफ फील्ड कन्वर्ट होती है। देखिए अब हम Fe3+ कटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो शेल्स सेम है, शेल्स जिस लेटर से डेसिग्नेट किए जाते हैं वो भी सेम है, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, जो न्यूट्रल Fe एटम है वह 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, इसलिए Fe पर 3+ चार्ज आया, इसलिए यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो जो न्यूट्रल Fe एटम है उसमें से जो 4s ऑर्बिटल है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर Fe लॉस करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में से लॉस करेगा। इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन्स 2 फ्रॉम 4s ऑर्बिटल और 1 फ्रॉम 3d ऑर्बिटल न्यूट्रल Fe एटम लॉस करेगा और Fe एटम कन्वर्ट होगा Fe3+ कटायन में। तो जिसे हम तो आपको आंसर शीट में इस तरह से लिखना है Fe3+ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s0। तो आप एक बात मेमोराइज कीजिए, आप इस 3d ऑर्बिटल पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि 3d5 और 3d10 मतलब हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल और कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल यह मोर स्टेबल होते हैं कंपेयर्ड विथ पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डी ऑर्बिटल है यह हाफ फील्ड है, इसलिए यह मोर स्टेबल है इन Fe3+ कटायन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यह क्यों स्टेबल होते हैं, इसके पीछे एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट है, जो कि सेम स्पिन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है यह अपनी पोजीशन चेंज करते हैं जिससे एनर्जी रिलीज होती है और जो कटायन है वह स्टेबल बनता है। यह इसके पीछे का रीज़न है। तो हमें यहाँ पर सिंपली यह इस बात पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल और कम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल यह मोर स्टेबल है कंपेयर्ड विथ पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल, और इन Fe3+ कटायन 3d ऑर्बिटल यह हाफ फील्ड होते हैं और इसलिए यह मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं कंपेयर्ड विथ Fe2+ कटायन। तो आपको आंसर शीट में इस तरह से लिखना है 3d5 मतलब हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल दिखाना है और उसके साथ ही लिखना है हाफ फील्ड 3d ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, सो Fe3+ कटायन इज मोर स्टेबल। तो आपको इस तरह से अगर क्वेश्चन आया तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। देखिए यूनिट का नाम है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और जो Fe है मतलब आयरन है यह ट्रांजिशन एलिमेंट है, और इसलिए ऑन द Fe एटम मतलब आयरन पर इस तरह से क्वेश्चन इस यूनिट में इंक्लूड किया गया है। तो क्वेश्चन यह पूछा गया है कि आयरन
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो +2 और +3 में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी? तो आपको सबसे पहले आयरन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो आयरन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा। आयरन जो है Fe, तो इसके सराउंडेड 4 शेल्स होती है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल। फर्स्ट शेल को हम n=1 मतलब फर्स्ट नंबर देते हैं, जिसे कैपिटल K लेटर से दिखाते हैं। n=2 जो सेकंड शेल है उसे कैपिटल L लेटर से दिखाते हैं। n=3 मतलब थर्ड शेल, जिसे हम कैपिटल M लेटर से दिखाते हैं। और n=4 मतलब फोर्थ शेल, जिसे हम कैपिटल N लेटर से दिखाते हैं। तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा न्यूट्रल Fe एटम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s2। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें न्यूट्रल एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है। तब यह Fe न्यूट्रल एटम Fe2+ कटायन में कन्वर्ट होगा। और एक सिचुएशन में हमें न्यूट्रल Fe एटम से 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है। तब न्यूट्रल Fe एटम Fe3+ कटायन में कन्वर्ट होगा। और बाद में हमें कंपैरिजन करना है कि Fe2+ और Fe3+ में से कौन सा स्टेबल है। तो सबसे पहले हम Fe2+ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, जब वैलेंस शेल या लास्ट शेल जो है 4 शेल, जिसमें 4s ऑर्बिटल प्रेजेंट है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन Fe एटम लॉस करेगा। तब Fe एटम Fe2+ कटायन में कन्वर्ट होगा। तो तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा Fe2+ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 एंड 4s0। तो आपको यहाँ पर इस बात को मेमोराइज करना है कि Fe2+ आयन में जो 3d ऑर्बिटल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी हम Fe एटम को Fe3+ कटायन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, जब Fe न्यूट्रल एटम Fe3+ कटायन में कन्वर्ट होगा तो वह 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल और 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d ऑर्बिटल लॉस करेगा। मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा और बाद में न्यूट्रल Fe एटम Fe3+ कटायन में कन्वर्ट होगा। तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Fe3+ कटायन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s0। तो यहाँ पर आप 3d ऑर्बिटल पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अभी 3d5 यह इस तरह से इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया। और हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि जब d ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो या कम्प्लीटली फील्ड हो, तब वो मोर स्टेबल होती है कंपेयर्ड विथ पार्शियली फील्ड d ऑर्बिटल। Fe3+ कटायन में जो d ऑर्बिटल है वह हाफ फील्ड है। इसका मतलब है कि यह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यह मोर स्टेबल है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। और इसीलिए Fe3+ कटायन यह मोर स्टेबल है कंपेयर्ड विथ Fe2+ कटायन। इस तरह से हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए 2 मार्क के लिए, तो आपको न्यूट्रल Fe एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, Fe2+ कटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, Fe3+ कटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। और Fe3+ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको 3d5 ऑर्बिटल के नीचे अंडरलाइन करके लिखना है कि दिस ऑर्बिटल इज हाफ फील्ड एंड सो मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एंड सो Fe3+ कटायन इज मोर स्टेबल कंपेयर्ड विथ Fe2+ कटायन। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपको आउट ऑफ 2 मार्क मिल जाएंगे।